Hello and Namaste. Welcome back to the channel, everyone. This is freshly brewed content, and today we are going to talk on the different effects of sleep on your body and your daily activities. We are going to talk on all of those things that are important for you to have a good sound sleep. We'll be discussing all of those sleep patterns and sleep timings that you can opt for yourself depending upon the requirement of your lifestyle, your work, or just simply for your self betterment. So, without wasting any time, let's get on to the topic and begin. Sleep, an important process that is practiced by almost every living creature. Ever since the birth, sleep becomes an essential part of our lives. It is the process of giving your body some rest, which is much needed at the end of the day. After all the hectic workloads and activities that you have been doing throughout your day, your body expects little relaxation so that it can get refreshed, rejuvenated, and re-energized for the next day's work and adventure. So it becomes very important for you to provide yourself with ample amount of sleep. Now sleep are of different kinds. Now when you're sleeping, your sleep is actually getting divided into number of sleep cycles. Each sleep cycle gets completed after 90 minutes. That is, the duration of each sleep cycle is 90 minutes. Now sleep cycles are consecutive, that is, they are continuous. Once you complete a sleep cycle, you move on to the other, and so on until you wake up. Now sleep cycle is nothing but it compromises of two types of sleep, which is distributed among four stages. When you are completing a sleep cycle or when you are in a sleep cycle, you are actually traveling or experiencing through all of those four stages. The first three stages are of type NREM sleep, that is the non-rapid eye movement sleep, and the last stage is of type REM sleep, that is rapid eye movement sleep. Now let's talk about stages. During this stage, you are actually having a very light sleep. You can be easily awakened during this stage of sleep, and because of this, you can actually experience the changeover from wakefulness to sleep. And this experience of changeover from wakefulness to sleep is scientifically termed as hypnagogia. यानी कि आपकी नींद इतनी हल्की रहती है कि आपको ये एहसास होता है कि आप धीरे धीरे गहरी नींद की तरफ बढ़ रहे हो, राइट? और इसी hypnagogia के दौरान आपको hypnic jerks या hypnic myoclonia लूसिड ड्रीमिंग्स के कारण एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अभी लूसिड ड्रीमिंग या लूसिड ड्रीम्स ऐसे डरावने या भयानक सपने हैं जैसे कि आप सीढ़ी से उतर रहे थे और आप अचानक से गिर गए, या आप बेड पे सो रहे थे और ज़मीन पे गिर गए। तो कुछ ऐसे डरावने सपनों के कारण जो आपके हाथों में और पैरों में झटके महसूस होते हैं, उन्हें कहा जाता है हिप्निक जर्क्स और हिप्निक मायोक्लोनिया। ये स्टेज के दौरान आपके जो हार्ट बीट, ब्रीदिंग और आई मूवमेंट्स है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाते हैं, काफ़ी धीमे हो जाते हैं। आपका जो ब्रेन एक्टिविटी है वो कम हो जाता है और ये स्टेज 5 से लेकर 15 मिनट तक चलता है। इवन इन स्टेज 2 यू एक्सपीरियंस अ लाइट स्लीप, अ स्लीप मोर डीपर देन दैट ऑफ स्टेज 1 बट स्टिल अ लाइट स्लीप, क्योंकि इस स्टेज में भी आपको जगाना काफ़ी आसान होता है। इस स्टेज के दौरान आपको स्लीप स्पिंडल्स का एहसास होता है। स्लीप स्पिंडल्स यानी एक रैपिड रिदमिक ब्रेन वेव एक्टिविटी होता है जिसके कारण आपको मसल ट्विचेस या मसल कॉन्ट्रैक्शंस होता है और जिसका एहसास होता है। इस स्टेज के दौरान आपके बॉडी का टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होता है और आपका जो अवेयरनेस है सराउंडिंग्स को लेकर वो काफ़ी कम हो जाता है। योर हार्ट बीट एंड योर ब्रीदिंग स्लोज डाउन इवन मोर, योर मसल्स रिलैक्स इवन मोर एंड योर आई मूवमेंट्स कम टू अ स्टॉप। ये स्टेज जो है 10 से 20 मिनट तक के लिए लास्ट होता है, 10 से 20 मिनट तक के लिए चलता है, और ये स्टेज एक्चुअली आपके डीप स्लीप से जाने से जस्ट पहले होता है, राइट? और ये वही स्टेज है जहाँ पर आप अपना टोटल स्लीपिंग टाइम का जो मैक्सिमम हिस्सा है इसी स्टेज में आप गुजारते हो। स्टेज 3 इज एक्चुअली वेयर यू एक्सपीरियंस योर डीपेस्ट स्लीप एंड हेंस इज नोन एज डीप स्लीप, स्लो वेव स्लीप और रेस्टोरेशन स्लीप। दिस इज द टाइम व्हेन यू आर गेटिंग योर बॉडी रिपेयर्ड, यू आर एक्चुअली ग्रोइंग न्यू टिश्यूज। यही वो समय है जहां आपके मसल्स के लिए ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, आपके शरीर के अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और आपके जो एनर्जी लेवल्स है वो वापस से रिस्टोर हो जाता है। सो यही वो नींद है, यही वो गहरी नींद है जिसके बाद आपको कोई थकान महसूस नहीं होता।
यही वो नींद है जिसके बाद आपको एक पॉजिटिव एनर्जी है या फिर एक पॉजिटिव वाइब जो है वो फील होता है, राइट। इस स्टेज के दौरान आपके ब्रीदिंग और आपका जो हार्ट बीट्स है वो उसके लोएस्ट पॉसिबल स्टेट में रहता है। आपके आई मूवमेंट्स बिल्कुल बंद रहते हैं, आपके कोई आई मूवमेंट्स नहीं रहता, आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो रहता है और आपका बॉडी जो है वो रिपेयर हो रहा होता है। डीप स्लीप स्टेज जो है ये पहले 2-3 स्लीप साइकिल्स में लंबा रहता है, इनका ड्यूरेशन लंबा रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आपके स्लीप साइकिल्स आगे बढ़ते हैं, आपका डीप स्लीप जो है उसका ड्यूरेशन कम होते जाता है। तो ये एक नेचुरल इफेक्ट है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका डीप स्लीप जो है उसका ड्यूरेशन भी कम होते जाता है, राइट। एक हेल्दी एडल्ट जिसका उम्र 30 या 35 से कम है, वो अपने टोटल स्लीप टाइम में से 2 या 2.5 घंटा जो है डीप स्लीप में गुजारता है। यही वो स्टेज है जहाँ पर आपको जगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका जो अवेयरनेस है सराउंडिंग्स को लेके वो बिल्कुल नलीफाई हो जाता है, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर कोई शोर या आवाज़ भी हो आपके आसपास तो भी वो आपको सुनाई नहीं देता। एंड इफ़ यू आर मेड टू वेक अप एट दिस स्टेज, यू आर गोइंग टू कम्प्लीटली फील ग्रॉगी एंड डिसओरिएंटेड। आपको आपका सिर बहुत भारी लगेगा, आपको उठने का बिल्कुल मन नहीं करता और आप काफ़ी डिस्टर्ब फील करते हैं। Fourth stage, the last stage of sleep cycle is of type REM, that is rapid eye movement type of sleep. This stage first occurs about 70 to 90 minutes after you fall asleep. Your eyes begin to move in various directions rapidly behind your eyelids. Mixed frequency brainwave activity becomes closer to that seen in your wakefulness. Your breathing becomes fast and irregular. Oxygen consumption by your muscles increases. Your heartbeats and blood pressure increases to nearly somewhat similar to that observed when you are awake. Most of your dreamings occur in this stage, that is in REM stage. But यह ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी सपना है या आपका जो भी सपने हैं वो सारा का सारा इसी स्टेज में हो। कुछ सपने आप NREM स्टेजेस में भी देखते हो, लेकिन ये वही समय है जहाँ पर आप अपने सपनों में खोए हुए रहते हो, क्योंकि जो सपने आप यहाँ देखते हो वो काफ़ी रिच होता है, काफ़ी वेल डिटेल्ड या काफ़ी वेल विजुअलाइज्ड रहता है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसका जो एक्टिविटी लेवल्स है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका होता है, वो काफ़ी एक्टिव रहता है। तो इसके कारण आपका जो सोच है, आपका जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है, आपका जो क्रिएटिविटी है वो आपके सपनों में भी उतर आता है। और यही वो सपने हैं जिसे आप अपने हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर रहे होते हो, अपने मर्जी के हिसाब से मोड़ रहे होते हो, अल्टर कर रहे होते हो, चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो इतना एक्टिव रहता है कि आप उस समय भी नींद में भी सोच पाते हो। इसी कारण आप अपना सोच, अपना क्रिएटिविटी जो है अपने सपनों में उतार देते हो, क्योंकि आपने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कुछ ऐसे सपने देखते हो कि अगले दिन सुबह उठने के बाद आपको ये एहसास होता है, आप ऐसे सोचते हो जैसे कि ये सपना मैंने ही बनाया था, मैंने ही डिसाइड किया था कि इन सपने में होगा क्या, और एक्चुअल में आपने ही किया होता है, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और आप जो भी सपना देख रहे होते हो उस सपने के ऊपर सोचते हो और इसी कारण आप उसे बदलते हो, उसे एडिट करते हो। सो जो भी आप ड्रीम्स देखते हो REM स्टेज में, उसे आप ही डिसाइड कर रहे होते हो, आप ही उसे डिजाइन कर रहे होते हो। For most of the dreams in REM stage, you become the director of that dream and you direct it. जो कि आपका ब्रेन इस समय काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी एक्साइटेड लेवल्स पे है। उसके कम्प्लीटली ऑपोजिट आपका बॉडी जो है वो टेम्परेरीली पैरालाइज्ड रहता है, और इस टेम्परेरी पैरालिसिस को या लैक ऑफ मसल एक्टिविटी या मसल मोबिलिटी को कहा जाता है एलोनिया। और जिन लोगों में ये एलोनिया डिसऑर्डर रहता है उन्हें ये आदत रहती है कि वो नींद में से उठकर चलने लगे, और इसी कारण कि आपका ब्रेन जो है वो काफ़ी एक्टिव है और आपका बॉडी इमोबिलाइज्ड है या टेम्परेरीली पैरालाइज्ड है। इन दोनों के बीच में का ये कॉन्ट्राडिक्टरी एक्टिवनेस को ध्यान में रखते हुए इस REM स्लीप को पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहा जाता है। जब आप पहली बार REM स्टेज पहुंचते हो तो वो सिर्फ 10 मिनट के लिए चलता है, लेकिन जैसे जैसे आप स्लीप साइकिल्स को एडवांस करते जाते हो, आप नए नए स्लीप साइकिल्स में जा रहे होते हो, वैसे वैसे आपका REM टाइम भी जो है वो बढ़ते जाता है, और ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 1 घंटा तक पहुंच जाता है। REM स्लीप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपके जो लर्निंग और मेमोरी एबिलिटीज़ है और आपका जो ब्रेन के अंदर के न्यूरल कनेक्शंस है, कनेक्टिविटी है, उसे एस्टैब्लिश करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। जो बच्चे 2 या 2 साल से छोटे हैं
उनके लिए REM स्लीप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो REM स्लीप पे भी डिपेंडेंट रहता है। और इसी कारण जो बच्चे हैं 2 साल से छोटे, वो अपना मैक्स टोटल स्लीपिंग टाइम जो है उसमें का 50% टाइम REM स्लीप में बिताते हैं। और जो एक अडल्ट है वो 20 से 25% अपना टोटल स्लीप का REM में गुजारता है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आप अपना समय जो है REM स्लीप में कम बिताते हैं। और जो भी सपने आप REM स्टेजेस में देखते हो वो आपको याद रह जाता है, और जो आप NREM स्टेजेस में देखते हो वो आपको ज़्यादातर याद नहीं रहता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पूरा सपना REM स्टेज में ही देखें, कुछ सपना आप NREM स्टेजेस में भी देखते हो। तो ये थी वो सारी स्लीप स्टेजेस जो आप स्लीप साइकिल्स के दौरान एक्सपीरियंस करते हो। और एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि देश में हालात काफ़ी ख़राब है। एक तरफ दिन भर दिन कोविड-19 या कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आसाम और वेस्ट बंगाल के ऐसे कई इलाके हैं जिसे आम्फान तूफान ने तहस महस कर रखा है। तो इस मुश्किल घड़ी में जो हमारे डेली वेज वर्कर्स है, डेली वेज लेबरर्स है, जिनके पास पैसे कमाने के लिए कोई काम नहीं है, और जिसके कारण ना ही वो अपने घरों का भाड़ा भर पा रहे और ना ही अपने लिए खाने पीने का सामान खरीद पा रहे, या वो लोग जो इस तूफान के चपेट में आए हैं और उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और ऐसे कई लोगों के लिए हम और आप मिलकर इस देश के एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जरूर कर सकते हैं। आप अपने घरों में बैठे बैठे ही इन सारे लोगों को उनके ज़रूरतमंद चीज़ें पहुंचवा सकते हैं। वैसे तो आप इस समय कई सारे कॉजेज़ के लिए कई सारे वेबसाइट्स के थ्रू डोनेट कर सकते हैं, इसलिए कुछ वेबसाइट्स के लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया है, जिसे क्लिक करते ही आप उन सारे वेबसाइट्स पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप डोनेशन कर पाएंगे। या आप इन वेबसाइट्स को डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा डोनेट कार्ड और आपको डोनेट कार्ड का वेबसाइट मिल जाएगा, जहां पर से आप डेली वेज वर्कर्स को हेल्प कर सकते हैं, स्ट्रे एनिमल्स को हेल्प कर सकते हैं, ओल्ड एज पीपल या सीनियर सिटीजन्स को हेल्प कर सकते हैं जिन्हें इस समय काफ़ी हेल्प की ज़रूरत है, और उन सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं जिन्हें तूफान की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आप कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं, चाहे आप बिस्किट्स डोनेट कीजिए, पानी का बॉटल डोनेट कीजिए या कपड़े डोनेट कीजिए। इस मुश्किल समय में आपका छोटा सा छोटा योगदान भी कुछ लोगों के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। देश संकट में है तो देश को ही इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये देश मुसीबतों का सामना तब तक नहीं कर पाएगा जब तक इस देश के देशवासी एक साथ खड़े नहीं होते। जब तक ये आपदा टल नहीं जाता, हम सबको एक दूसरे का सहारा बन के रहना चाहिए और एक दूसरे का मदद करना चाहिए। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि ये टॉपिक या ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी वास्ट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो ताकि ये आपको समझने में आसान रहे, हमने इस वीडियो को 2 हिस्से में डिवाइड करने का डिसीजन लिया है। और जो अगला वीडियो है, अगला पार्ट है, उसमें हम स्लीप प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट स्लीप पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल या आपकी ज़रूरतों के मुताबिक। और हम ऐसे कुछ टिप्स देने वाले हैं जो आपकी नींद को बेहतर कर सकता है, राइट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा सा भी आपको इसका कंटेंट यूजफुल लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नोटिफिकेशन आइकॉन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि अब आपको पार्ट 2 मिस नहीं करना है। और जो भी हम वीडियोस हमारे चैनल में अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन आपके डिवाइसेस में सबसे पहले आ जाए। शेयर इट विथ योर फैमिली, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको इस वीडियो में का कोई हिस्सा समझ नहीं आया हो, उसके रिलेटेड डाउट्स हो, या अगर आप इस वीडियो से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। वी विल बी हैप्पी टू रिसीव योर कमेंट्स। बट टिल देन, हैव अ गुड स्लीप and remember to complete your sleep cycles. See you in the next video.